Microbes in Human Welfare chapter. This chapter is very much important from your board exam as well as from your NEET or the medical entrance exam point of view. There are so many questions which can be asked from this chapter. Here are the few important topics which you from this chapter which I have mentioned there. In short, you can just learn these things and you can understand. I would be telling you per page wise, it is just given there. Like first of all, you have to keep in mind about certain things like what are fermenters. So these are the vessels in which microorganisms are grown on the large scale, that is called fermenters. Then microbes in household product, that means in our home the products which we use, in that microbes are there and which are very much beneficial for us. This lactic acid bacteria which we have discussed in our that Microsoft meeting class, that lactic acid bacteria or the lactobacillus, they produce lactic acid that coagulate the partially digested milk. लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे जो कि partially digested milk को coagulate, आप देखते हो थक्का जम जाता है, that is called coagulate, वो कर देता है. एंड इस केस में मिल्क को कन्वर्ट कर दिया गया कर्ड में and it increases the quantity of which vitamin B12. This thing you have to learn. Then the next household common microbe is baker's yeast, or it is called as Saccharomyces cerevisiae. It is unicellular fungi. With the help of it, fermentation of dough is done like bread, dosa, idli. Apart from it, toddy, a certain kind of drink, it is prepared by the fermentation of sap from the palm, etc. These are the things which are made from baker's yeast. Next one is the Propionibacterium cerminae. This you have to learn, Propionibacterium cerminae. This is called Swiss cheese. में ये microorganism use होता है which gives specific flavor to that Swiss cheese. The same is with the Roquefort cheese is also specially made with the help of a specific fungi that is not mentioned in your book. So only you should know that fungi is used to treat the Roquefort cheese in order to make Roquefort cheese. Industrial products. There are industries where large scale production of certain things is occurring, so that there also microorganisms are used like brewer's yeast. Brewer's means drinks के लिए जो yeast use होगा, that is तो ब्रीविंग इंडस्ट्री है जहाँ पे ड्रिंक्स बन रही है उसकी इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रहा है दैट इज ईस्ट. दैट इज ऑल्सो द सेम सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, यानी इसके दो नाम हो जाएंगे. बेकिंग में यूज़ होगा तो बेकर्स ईस्ट, और अगर ब्रीविंग में यूज़ होगा तो ब्रीवर्स ईस्ट. दैट थिंग इज देयर. नाउ विच बेवरेजेस, द बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर एक्सेट्रा आर जस्ट मेड बाय द यूजिंग ऑफ ईस्ट. अब इसको किस किस पे यूज़ करते हैं तो माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट्स जूसेस एक्सेट्रा आर ट्रीटेड with this is to produce ethanol. And how example is mentioned, wine and beer, these are made without distillation. No distillation process is carried out. The wine or beer production, while whiskey, brandy, rum, these are just made with the help of distillation of fermented broth. जो fermentation हो चुका है जिस liquid का, like malted cereals या fruits, उनका डिस्टिलेशन होता है तब विस्की, ब्रांडी या रम बनता है. एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होगी दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. बट यहाँ पे अगेंस्ट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेड विद रेफरेंस टू द disease causing microorganisms, not the human beings. So that thing is there. Antibiotics are those chemicals which are produced by some microbes and they kill or retard the growth of other microorganisms. So basically disease causing microorganisms. Discovery of antibiotics. तो antibiotics की discovery किसने की थी? Credit goes to the scientist Alexander Fleming. What he has observed, उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश है उसमें उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम रख दिया. अब देखा कि स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है वो वहाँ पे नहीं ग्रो कर पा रहा है जहाँ पे फंगस ग्रो की हुई है. बैक्टीरिया है उस पेट्री डिश में नहीं ग्रो कर पा रहा है जहाँ पे फंगस है, जबकि बाकी पेट्री डिश में ये प्रॉपरली ग्रो कर रहा है. सो व्हाट वुड बी द रीज़न? जब उन्होंने स्टडी किया देखा कि दिस फंजाई इज रिलीजिंग सर्टेन केमिकल विच इज़ रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई. इस फंजाई का नाम उन्होंने फंजाई का नाम था
पेनिसिलियम नोटेटम, और इसीलिए इससे निकलने वाले केमिकल का नाम क्या रख दिया गया, पेनिसिलिन। नाउ इफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज डेवलप्ड बाय अर्नेस्ट चेन एंड हर्बर्ट फ्लोरी। डिस्कवरी तो आपने देखी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, बट इसको फिर इफेक्टिव हो, लोगों को सही से यूज़ करें, काम आए, उसके लिए किसने वर्क कर दिया, अर्नेस्ट चेन ने और हर्बर्ट फ्लोरी ने, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला इस काम के लिए अलॉन्ग विद द फ्लेमिंग के साथ 1945 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर दैट which I have explained you in both the classes here also and in the previous class also. Antibiotic means against life in the context of disease causing organisms. But for human being, a pro-life, not against life. Why? Antibiotic का मतलब होता है against life, disease causing microorganism के रेफरेंस में, बट ह्यूमन्स के रेफरेंस में इसको प्रो लाइफ यानी लाइफ सेविंग क्यों बोला जाता है और नॉट अगेंस्ट, ऐसा क्यों है? तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. Next, if we will come to the next topics which are there and important, that is the chemicals, enzyme या bioactive molecules which are useful for us, that means microbes in human welfare. Aspergillus niger जो फंगस है उससे हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड, आपको पता है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. देन एसिडोबैक्टर एसिटाइज से हमें क्या मिल जाता है, एसिटिक एसिड. You know what are the uses of acetic acid in chemistry, you would be knowing, and in other industrial area also it is used. From Clostridium botulinum, butyric acid is just derived. Lactobacillus lactic acid. Saccharomyces cerevisiae give it gives ethanol. Now we are coming to the enzyme. We just get the enzyme lipases, which is used in detergent formulations and removing oily stain from the laundry. आप देखते हो डिटर्जेंट ऐड करते हो और उसमें इससे जो लिपिड का स्ट्रेन होता है वो हट जाता है. क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम्स वहाँ पे लाइपेजेस ऐड किया जाता है विच इज़ सिंथेसाइज्ड इन लैब. देन पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, ये एंजाइम यूज़ किया जाता है. क्लियरिफाइड बॉटल जूसेस, ये एग्जाम में आता है कि वाई द बॉटल जूसेस आर क्रिस्टल क्लियर और दे आर क्लियर because they are treated with the pectinases and proteases which digest the cell wall which is made up of pectin as well as protein component, and that makes the juice look a bit smooth or the transparent or the clarified. Then the next one is the streptokinase. इसको ज़रूर याद करेगा, it's important. Streptokinase derived by the streptococcus bacterium के थ्रू मिलेगा ये. क्लॉट बस्टर, ये आता है एग्जाम में, ऐसा जैसे क्लॉट बस्टर किसी की बॉडी में क्लॉट हो गया है, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे. रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स बाय पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक. किसी की मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है और उसको हार्ट अटैक आ सकता है, तो उस केस में क्लॉट को हटाने के लिए इट इज़ यूज्ड. देन साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज़ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ये किस फंजाई से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. इसको विचेस याद कर लेना. अब क्या होता है, जैसे सपोज हमारी बॉडी क्या करती है, ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देती है तो ट्रांसप्लांटेशन होता है, क्योंकि दूसरी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का पार्ट है, बॉडी जनरली उसको एक्सेप्ट नहीं करती है. तो उस केस में क्या होता है, इम्यून की सेल्स एक्टिव रहते हैं और उस ऑर्गन को वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. बट इफ़ वी वांट देम टू वर्क प्रॉपर्ली एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय द ऑर्गन्स, so in that case we use immunosuppressive agent like cyclosporin A, which is used during the organ transplantation. तो ये नीचे के तीन है वो ज़रूर याद करेगा, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन statins produced by yeast fungi Monascus purpureus. इसका काम क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जैसे किसी के ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको जो मेडिसिन दी जाएगी, जो केमिकल दी जाएगा, दैट इज द statins derived from the fungi Monascus purpureus, which inhibits the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. जो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कर रहे हैं जो एंजाइम्स, उसको ये रोक देते हैं. Then microbes in sewage treatment plant, these all things are given in NCERT. Here I have just noted down in the form of flow diagram so that all of you can easily trace out the important things here. Like sewage treatment plant used for treatment of sewage waste, it occurs in two stages: primary treatment and the secondary treatment. What is secondary treatment is also known as biological treatment. What happens here? Physical removal of large and small particles through filtration and sedimentation. यानी कि सपोज लार्ज पार्टिकल्स सीवेज में फ्लो होके गए हैं, ये सीवेज है, यहाँ से लार्ज पार्टिकल्स पॉली बैग हो गए सर्टेन विद पेबल्स और
सर्टेन अदर सॉलिड वेस्ट वो दे भी रहे, तो उसको क्या करते हैं, उसको हटा लेते हैं। यहाँ पे सीप जैसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, उससे चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी। और थोड़ी देर के लिए सपोज यहाँ पे इसमें डस्ट है तो उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कलेक्टिंग टैंक पर रख दिया, तो जो हेवी वेस्ट है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। सेडिमेंट मतलब बैठ जाना। अब इससे क्या होगा, जब ये हो गया उसके बाद रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग वेस्ट एंड दैट रिमूवल ऑफ ग्रिड। अब इसमें फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, 2 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले तो अगर इस लिक्विड के ऊपर कुछ फ्लो कर रहा है उसको हटा देंगे, फिर जो भी नीचे बैठ गई ये चीज़ें उसको भी हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें हट गई। अब इसके बाद पहले ये हम पढ़ेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर आएंगे सेकेंडरी में, बिकॉज फर्स्टली इट अकर्स देन इट अकर्स, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। ऑल सॉलिड दैट सेटल्स फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड सुपरनेटेड फॉर्म्स एफ्लुएंट। अब जो भी सॉलिड है जो नीचे रुक जाता है, इसमें बेस में नीचे बैठ जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और ऊपर जो लिक्विड बचता है उसको हम बोल देते हैं एफ्लुएंट। ठीक है, दिस प्राइमरी स्लज कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन द फील्ड और इट कैन बी यूज फॉर दैट पर्पज। और एफ्लुएंट को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम भेज देते हैं। ना व्हाट हैपेंस देयर, प्राइमरी एफ्लुएंट, जहाँ पे जो एफ्लुएंट मतलब ऊपर की ओर जो लिक्विड था उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया ना, दिस इज़ कॉल्ड एफ्लुएंट। अब इस एफ्लुएंट में हमें क्या करना है, वी हैव टू पास इट थ्रू द एरेशन टैंक। ऐसा टैंक से ले जाया जाएगा जहाँ पे वाटर के अंदर एयर की क्वालिटी यानी ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि हम एरेशन टैंक यानी ऐसा टैंक जिसमें एयर डाली जा रही है और जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन आ रही है, तो उससे क्या होगा, जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो डू एरोबिक रेस्पिरेशन, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी माइक्रोब्स की, तो सडनली क्या होगा, क्योंकि माइक्रोब्स सडनली रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो जो लिक्विड में ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसका लेवल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगा। इट कॉजेज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिडक्शन, BOD। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसका लेवल रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि अब ऑर्गेनिज्म जितनी ऑक्सीजन मांग रहे हैं उनकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। तो अब क्या करेंगे, एफ्लुएंट इज पास टू द सेटलिंग टैंक टू सेडिमेंट द फ्लॉक्स, इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लेज। अब यहाँ पे क्या था, वन थिंग मोर यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यहाँ पर हमने टर्म यूज किया फ्लॉक्स, यानी जो विग्रस एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कर रहे थे। इसमें फंजाई का मैश लाइक स्ट्रक्चर, आपको पता है फंजाई रेशेनुमा होता है, वो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा और उसमें बैक्टीरियम ट्रैप्ड रहेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई दोनों ही ग्रो करेंगे स्लेज में। इस स्ट्रक्चर को हम फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लॉक्स, FLOCS फ्लॉक्स। तो ये जो फ्लॉक्स है इसको आप सेटल को छोड़ दिया जाएगा जैसे ही BOD लेवल कम हो जाएगा। अब ये जो फ्लॉक नीचे बचा है, ऊपर एफ्लुएंट है नीचे फ्लॉक है, इस फ्लॉक को एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज मतलब ऐसा स्लज या ऐसा सेमी सॉलिड सब्सटेंस जिसमें माइक्रोब्स हैं, दीज माइक्रोब्स आर लिविंग एक्टिव, और अगर आप इसको दूसरे प्राइमरी एफ्लुएंट में डालोगे तो वहाँ पे ये फिर बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो इट वुड बी रिटन इन योर बुक दैट इट इज़ यूज्ड एज इनोकुलम। इनोकुलम मतलब जब अब दूसरा जो सीवेज वाटर आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, उसमें इसी से हम थोड़ा सा माइक्रोब लेके डाल देंगे एंड वहाँ पे इसकी फिर से ग्रोथ होगी बहुत विग्रेसली। अब क्या होगा, इसके बाद इसको जो हमारा एफ्लुएंट बचा है एक्टिवेटेड स्लज अलग करने के बाद इसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ऐसे जगह पर ले जाएंगे जहाँ पे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मिथेनोजेंस, वी विल डाइजेस्ट इट। अब इसके बाद जो वाटर बचा है वो प्योर है, इसको हम नेचुरल बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं, जैसे आप देखते हैं गंगा जी उसमें इसको रिलीज़ कर देते हैं। इन सर्टेन केसेस यू कैन स्टडी और इन अदर बुक्स दैट दीज वाटर आर सर्टेन टाइम ट्रीटेड विद द क्लोरीन, सो दैट जो फर्दर उसमें अगर कुछ जर्म्स हो वो किल हो जाए, या इसको आप UV लाइट ट्रीटमेंट भी दे सकते हो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देन नोट, फ्लॉक्स के बारे में आप बता दिए जो हमने भी आपको एक्सप्लेन किया था, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। फंगस का माइसीलियम है, उसमें बैक्टीरिया ट्रैप्ड है
और ये पूरा कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, मैश जैसे जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है, दैट इट इज फॉर्म। अब BOD क्या है, दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज BOD. So BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. जनरली हम कहते हैं कि आपका कितना ऑक्सीजन यूज़ होगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको वो डाइजेस्ट कर रहा है। तो BOD टेस्ट ये बताते हैं कि वाटर में कितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं। ग्रेटर BOD है मतलब मोर पॉल्यूटेड वाटर, जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वाटर बहुत पॉल्यूटेड होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। दैट मीन्स व्हाट आर द स्ट्रैटजीज ऑफ गवर्नमेंट टू ट्रीट द pollution which is caused in the river Ganga or the river Yamuna. So for it what is there, pollution इसको रोकने के लिए we have to just follow the certain strategy which we have studied right now only. That means that do not directly discharge the sewage water, rather just do the sewage water treatment, then only release it into the water body. The next one is there, that is इसको एक डायग्राम बुक में करना है, वो आपको देखना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग द मीटिंग दैट ऑन द माइक्रोसॉफ्ट मीट. Study you have to study and just telling you name the gases produced in secondary treatment of sewage and how. अगर आप सीवेज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है और कैसे, ये आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. दिस आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट्स, जितना आज पढ़ा दिया गया है उसको याद कर लीजिएगा. And related with the book, in case of any query, do ask your query from me.